सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जब हम ग्रामर में बहुत सारे बच्चे जहां पे गड़बड़ करते हैं और कंफ्यूजन होता है कि कौन से वर्ब के साथ कौन सा प्रेपोजिशन की जोड़ी है, कौन सा वर्ब कौन से प्रेपोजिशन को सूट करता है, फिट करता है, which verb is an apt choice for the particular preposition or which preposition is an apt choice for that particular verb. इसको देखने के लिए ही स्टूडेंट्स एक चीज अच्छे से समझिए, देयर इज नो ग्रामेटिकल रूल कि इस वर्ब के साथ यही प्रेपोजिशन जाएगा। तो बेसिकली आपको वर्ब के साथ उनके कॉम्बिनेशन प्रेपोजिशंस को लर्न करना पड़ता है। वर्ब्स के साथ उनके कॉम्बिनेशन प्रेपोजिशंस को लर्न करना ही उसका सबसे बेस्ट तरीका होता है, rather than just thinking about the grammar rules that design the particular preposition with that particular verb. इसीलिए कुछ prepositions कुछ verbs के साथ fix है। For example, for. If you go for the word for, waiting for, apologize for, applied for, ask for and prepare for, ये सारे verbs के साथ for जाता है। Next, from, protect from, recovered from. Next, saved from, suffer from. So please remember, at least आप इतने words को तो रट्टा मारे। I'm waiting for the bus. I have apologized for being late. He has apologized for being rude. Clear? Next, I have applied for the job. Asking for a coffee. He's asking for a cup of what? Sorry, he's asking for a cup of coffee. She's asking for a glass of water. Next, I have to prepare for my exam. She will protect you from. किससे बचाया जाएगा? He has recovered from. कौन सी बीमारी से अच्छे हुए हो? Then she has saved him from and suffering from. Next, verbs with in. इनके कौन से verbs हैं? I believe in, specializes in and succeed in life. Please remember, जो highlight कर रही हूं उनको आप note down करें, pen down करें, याद रखें। Of, approve of, died of, smells of. On, depend on, based on, concentrate on, relying on and agree on. Agree on anything. Agree with someone on a particular topic. This is the last. To के साथ कौन से जाते हैं? Please learn. Listening to. What are you listening to? Introduce yourself to Mr. So and so. Refer to. Responded to. Apologize to. With. Agree with someone. Provide जिस चीज से दी जाती हो, dealing with. So you have to remember prepositions और verbs की जोड़ी के लिए as such कोई rule नहीं है. So you have to learn them together as connotations that this verb will go with this preposition. चलिए let's get ready with grammar geek. आज के grammar geek के लिए बहुत ही simple सा एक चार्ट है जहां पे कुछ ऐसे adverbs हैं और कुछ ऐसे verbs भी हैं जो आप आपके स्टेटमेंट में पॉसिबिलिटी, कंफर्मेशन, प्रोबेबिलिटी के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप बहुत श्योर हो किसी चीज के बारे में, इफ यू आर वेरी श्योर, देन यू कैन से डेफिनेटली, आई विल डेफिनेटली कम टू द पार्टी, यानी मैं पार्टी में आने वाली हूं, आई एम वेरी श्योर ऑफ समथिंग। नेक्स्ट, बाउंड टू, ही इज बाउंड टू गेट द पनिशमेंट from the teacher, यानी उसको punishment मिल के ही रहेगी। Sure, you are very sure of that thing. Certain to, no chance, no way. There is no way कि ये चीज होगी या नहीं होगी। No chance, I'm going to go. No chance, I'm going to go. It means it's very sure, I'm going. ये very sure के लिए यूज होने वाले adverbs, verbs और इसको आप determiners भी कह सकते हैं। Sure, अगर आप सिर्फ sure हो, very sure नहीं हो, okay, I will come. Sure that, I'm sure that he is going to get the punishment from the teacher, but I'm not very sure. पक्का है, ज्यादा पक्का है, पक्का है, कच्चा पक्का है, almost sure, कच्चा पक्का है, कहते हैं ना, कच्चा पक्का, कच्चा नींबू, right, that kind of stuff. Probably I'll come for the party. Next, likely to, he's likely to get the punishment from the teacher.
Good chance. He has got a good chance of winning the game. Not much chance, कच्चा पक्का. Doubt है, thinks है, expect है, कच्चा पक्का. Not sure, बिल्कुल sure नहीं हूं मैं. So might, he might win. Or a chance, there's a chance that he might win. Not sure, I'm not sure whether he will win or not. So these are the words that are used to show the probability, the chances, and whether you are sure of a particular event or not. और आपके श्योरिटी का जो ग्रेडेशन है कि कौन सा वर्ड कैसे जाना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन दैट यू कैन रिमेंबर दिस टेबल. ग्रामर गीक का मैं बहुत सिंपल चीज बताना चाहती हूं. I am hating you. I am hating you. I hate you. I have owning a car. I have owning a car? No. I own a car. I am seeing you. I am seeing you. I see you. क्या है इन सेंटेंसेस में छुपा हुआ? तो फिर जो मैकडोनल्ड्स की लाइन है, I am loving it. I am loving it. I love it. Which is the correct one? Okay. इसको कहते हैं stative verbs. Stative verbs. What are stative verbs? ऐसे verbs जो state दिखाते हैं, जो basically state दिखाते हैं. यानी आप इनको ing नहीं लगा सकते. जनरली इनको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं लगता है. स्टेटिव वर्ब्स को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं लगता है. जैसे कि आई लव यू, आई एम लविंग यू नहीं बोलते हैं. आई हेट यू, आई एम हेटिंग यू नहीं बोलते हैं. आई सी यू, आई एम सीइंग यू नहीं बोलते हैं. आई ओन अ कार, आई एम ओनिंग अ कार नहीं बोलते हैं. तो ये स्टेटिव वर्ब्स को जनरली प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या कंटिन्यूअस टेंस नहीं लगता है. स्टेटिव वर्ब्स को जनरली ing नहीं लगता है. जैसे इसमें कौन कौन आते हैं? अग्री, बिलीव. आई बिलीव यू. आई एम बिलीविंग यू नहीं, आई बिलीव यू. आई अग्री विथ यू, आई एम अग्रीइंग विथ यू नहीं, आई अग्री विथ यू. डाउट, गेस, अपीयर, बिलोंग, हैव, मेजर, ये कुछ ऐसे स्टेटिव वर्ब्स हैं जिनको ing नहीं लगता है. स्टेटिव वर्ब्स को जनरली ing नहीं लगता है. नेक्स्ट, हैव, सी, बी, टेस्ट और कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो जब कोई स्टेट दिखाएंगे या कोई एक पर्टिकुलर एक्शन दिखाएंगे तो उनको ing नहीं लगेगा. लुक, द शेफ इज टेस्टिंग द सूप. हियर इट गोज. बट दिस कॉफी टेस्ट डिलिशियस, यानी कॉफी की स्टेट बता रहा है, कॉफी अच्छी है, नो ing. But when it is showing an action, that can go with ing. ठीक है, स्टेट या स्टेटिव वर्ब्स के लिए ing नहीं आएगा. So finally the words are in front of you. Unappetizing, apprehensive, irresolute, domineering, inexorable, mused and nonplussed. Okay, ग्रामर गीक पे आते हैं बच्चा. आज जो ग्रामर गीक का कॉन्सेप्ट है मैं बताने वाली हूं, इट इज ऑल अबाउट प्रोनाउन एंटीसीडेंट. प्रोनाउन एंटीसीडेंट क्या है मैम? ठीक है, नाउन को उठाकर कौन बैठता है उसकी जगह पे? प्रोनाउन. वाक्य अगर बड़ा हो, नाउन बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम क्या करते हैं? नाउन को उठाते हैं और प्रोनाउन की इसको जगह पे डाल देते हैं, राइट? तो जो प्रोनाउन नाउन की जगह पे आता है, वो प्रोनाउन ने उस नाउन को करस्पॉन्ड करना चाहिए. ओके, जिस नाउन की जगह पे प्रोनाउन आता है, अगेन आई रिपीट, लिसन केयरफुली, जिस नाउन की जगह पे प्रोनाउन आता है उस नाउन को हम कहते हैं एंटीसीडेंट. जिस नाउन की जगह पे प्रोनाउन आता है उस नाउन को हम कहते हैं एंटीसीडेंट या रेफरेंट भी कहते हैं इसको. और वो बहुत मैच करना चाहिए, उन दोनों के बीच में अग्रीमेंट होना चाहिए. जैसे मैम बताती हूं, देखो, सारा एंड शोना वेंट टू द स्टोर but she could not find what she was looking for. Look at this sentence. सारा और उसकी फ्रेंड स्टोर जाते हैं पर उसको नहीं पता, but she could not find what she was looking for. Now, ये she किसके लिए है? सारा के लिए है कि शोना के लिए है? सारा के लिए है कि शोना के लिए? We are not clear ना. This relationship is not clear. ये she किसके लिए आया?
इस लड़की के लिए आया कि इस लड़की के लिए आया, वी आर नॉट क्लियर. सो इन दिस कंडीशन either it has to be they, what they were looking for, या तो दे ले या दोनों नहीं तो फिर आप बोले सारा का नाम ले या शोना का नाम ले, बट यू हैव टू बी वेरी क्लियर. बेसिकली दिस इज प्रोनाउन एंड ये उसके एंटीसीडेंट्स हैं. ये प्रोनाउन है, ये उसका एंटीसीडेंट है. तो ये जो प्रोनाउन है ये इनके साथ अग्री करना चाहिए. ये प्रोनाउन इनके साथ अग्री करना चाहिए, वरना ये कंफ्यूजन हो गया. ये शी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सी लड़की? दोनों है तो दे डालो, और लड़की अगर आप उसको प्रोनाउन की जगह प्रॉपर नाउन यूज करोगे तो हमको क्लैरिटी होगी कि किसके लिए बोल रहा है. ठीक है. तो दिस इज ग्रामर गीक. द मोस्ट फ्रीक्वेंटली टेस्टेड प्रोनाउंस आर इट एंड इट्स, एंड you should always be very clear कि the pronoun should agree with the antecedent. The pronoun should agree with the antecedent. Okay, let's go for the grammar geek part. Everybody please focus on grammar and see. बहुत सारे बच्चों के ये था कि मैम what is the difference between themselves and there is a word called as themself. And there is a word called as themself. ये भी वर्ड हमने देखा है मैम. themselves और themself में क्या फर्क है? दोनों भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. रिफ्लेक्सिव मतलब प्रतिबिंब. I myself will do it. Myself, yourself, himself, herself. वैसे ही themself और themselves. दोनों में क्या डिफरेंस है और ये कहां पे यूज होते हैं? Themselves is a reflexive pronoun for them. They और them को अगर रिफ्लेक्सिव फॉर्म में यूज करना है तो themselves के फॉर्म में यूज करते हैं. तो मैम फिर themselves कहां आता है? जनरली फॉर्मल लैंग्वेज में नहीं आता है. जब किसी भी चीज का आपको जेंडर नहीं पता है, मेल है या फीमेल है, जब किसी भी चीज का आपको जेंडर नहीं पता है, मेल है या फीमेल है, वहां पे आप themselves यूज करते हो. फॉर एग्जाम्पल, इफ योर चाइल्ड इज थिंकिंग अबाउट चूजिंग अ स्कूल, दे कैन गेट गुड एडवाइस फ्रॉम दिस वेबसाइट. वहां पे इसके अलावा दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन हेल्पिंग समवन टू हेल्प themselves. जब आपको जेंडर नहीं पता, अभी someone यानी यहाँ पे मेल है या फीमेल है, वी डोंट नो, तो हेल्प वन सेल्फ, हेल्प themselves आएगा. यहाँ पे इसको करस्पॉन्ड करता है. चाइल्ड के लिए दे कैन बी टेकन एज दे. ठीक है. कभी कभी दे को सिंगुलर कॉन्टेक्स्ट में ब्रिटिश इंग्लिश में यूज किया जाता है when you don't know the gender of that living thing. When you don't know the gender of the living thing, दे को कभी कभी सिंगुलर कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है, और उसी का रिफ्लेक्सिव फॉर्म अगर वो सिंगुलर कॉन्टेक्स्ट में आए तो themselves है. क्लियर? themselves, themselves.